और मैगजीन्स का सिलेबस है, आई एम श्योर जिनके पास नहीं है वो व्हाट्सएप पे मैम से ले लें। एज अ रूल इस बात को बार बार रिपीट करना इज नॉट गुड, बट स्टिल मैं रिपीट कर रहा हूँ। काइंडली कीप क्वाइट फॉर द नेक्स्ट 28 minutes. After that you can speak. It's a very interesting talk. I'll try to make it more interesting. And today we are talking about crisp writing. कोई कुछ कहना चाहता है प्लीज पहले बोल दे। Please don't speak now, anybody. If it's very important only, then you should speak. Otherwise, my request is that you should listen for the next 30 minutes. Of course, जब मैं बोलने के लिए आपको मौका दे रहा हूँ तब आप कुछ सवाल पूछते नहीं, तो वो एक विडंबना है। अभी अगर आपको जरूरी हो तभी बोलेगा, क्योंकि मुझे मेरा टॉपिक को कवर करना है और मेरे पास सारे पावर पॉइंट में स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। Over the discipline is very important and voice and time is very perceptible. So please respect that. Okay. Crisp and clear writing. I start with the first slide. Before I start with the first slide, मैं शब्द के ऊपर आपके 1 मिनट का तवज्जो चाहूंगा, आपका 1 मिनट का समय चाहूंगा कि क्रिस्प राइटिंग का मतलब क्या है। लोग समझते हैं क्रिस्प का मतलब है जैसे वो अंकल चिप्स के चिप्स हैं मुंह में जाते ही कड़क हो जाते हैं, या वो एक फ्रेंच फ्राइज है मैकडॉनल्ड्स की जिसको मुंह में डालते ही आप कड़क से खा सकते हो। In English language, crisp writing is misunderstood as blunt writing, to the point writing. No, to the point and blunt writing is not crisp writing. Crisp writing का मतलब है when you put the message across without any so-called anomaly. सिर्फ 3 शब्द बोलूंगा, पर ये 3 शब्द नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिस्पली रिटन फॉर्मूला है, लोगो है, फिलॉसफी है या ब्रांड नेम है। और वो 3 शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुने, ये 3 शब्द हैं जस्ट डू इट। जस्ट डू इट कौन बोलता है? नाइकी। नाइकी सेज जस्ट डू इट। मैनेजमेंट कहता है प्लान इट, एनालाइज इट। जिन्होंने कभी मैनेजमेंट पढ़ी है, मैंने अपने क्लास में एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, फलाना ढिकाना, मैनेजमेंट, चल हट। नाइकी कहता है जस्ट डू इट। that is the biggest example of crisp writing. Nothing is impossible, कहता है Adidas. That is the example of crisp writing. Sprite बुझाए प्यास, बाकी सब आप सब जानते हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। That is the example of crisp writing. I'm sorry, but आजकल एक स्लोगन चल रहा है I can't breathe, और लोगों ने इसे लिख दिया है जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में। Even that is a form of crisp writing. So defining crisp writing नहीं, how to write crisply, ये 5 पॉइंट्स में अब आपके सामने कवर करने जा रहा हूँ। Once again, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी घड़ी से मेरी घड़ी को मिला लें। इस वक्त 3:04 हो रहे हैं, 5 मिनट होने वाले हैं, तो आप 5 मिनट लेट ज्वाइन किया, अगली बारी टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि we have to finish the session in time. It's all technology. So I'm again starting. I've just told you crisp writing is not blunt writing. Crisp writing is not to the point writing. Crisp writing means when you are able to put across the message without any anomaly. Anomaly का मतलब होता है बिना किसी ambiguous statement, बिना किसी दोहरेपन के आप एक मैसेज क्लियरली, जिसे हम कहते हैं ना स्पष्ट, सटीक, सीधी बात करना, that is called crisp writing. Point number 1, slide number 1, I'll read it and then I'll explain it. It says, keep the purpose clear in your mind. Of course, crisp writing का main point है. First thing first, what is your main purpose of writing? To inform, to educate, or to entertain or impress. Having this in mind will help you arrange your thoughts. It will help you decide which message to focus on. It can also give you an idea of the type of words to be used and the tone of the piece. For example, you can go straight to a point. If a memo or an email, you mention the most important part in the first para. You also use simple, straightforward language. Your priority is to get the message across quickly. It has to be easy to understand. दोस्तों, एक बहुत ही क्रिस्प मैसेज हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था जब लॉकडाउन 1 उन्होंने
अनाउंस किया था, उन्होंने यही बोला था, आप अंदर रहें और अब बस घर में रहें और बस केवल घर ही में रहें। जो पहला लॉकडाउन हुआ था 3 हफ्ते का, अगर आप उसको रिप्ले करके यूट्यूब पर देखें, तो उसमें उन्होंने अपनी मेंटल क्लैरिटी को डिपिक्ट किया था। इवन आज भी every second ad of the government, every second, I would say, writing on the social network, on blogs, it says about a word called practicing social distancing. So सबसे important चीज है, पहला पैरा दोबारा से पढ़ रहा हूँ. What is the main purpose of your writing? To inform, to educate, or to entertain or impress. Having this in mind will help you arrange your thoughts. It will help you decide which message to focus on first. तो सबसे important चीज क्या है? Clarity. Clarity का मतलब दिमाग में आपको ये देखना है कि आपके मैसेज का सबसे जरूरी पार्ट कौन सा है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सबने देखी होगी, खैर आजकल तो नहीं आ रही, पर 2-3 महीने पहले अखबार में सेल की एड कैसे आती थी? सेल 70% ऑफ, और 70% ऐसे लिखा होता था जैसे कि पूरा का पूरा पेज भरा हुआ है. पर जब हम स्टोर पे जाते थे तो हम जाकर कहते थे 70% वाला सामान का है सर, वो तो खत्म हो गया. अरे तुमने तो 70% बोला था. सर 70% नहीं लिखा था, अप टू 75 लिखा था, या कंडीशंस अप्लाई लिखा था. क्योंकि वो अप टू या कंडीशंस अप्लाई वो उन्होंने एक बहुत ही डिसेप्टिव तरीके से, अलग तरीके से लिखा था, जिसको हम शायद ढंग से पढ़ नहीं पाए. यानी कि उस एड का ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको अपने स्टोर की तरफ आमंत्रित करना, मोहित करना कि आप अंदर घुसे, आए, देखें, क्योंकि 70% वाला सामान मिले या ना मिले, पर आपके नाम पर एक एक्स्ट्रा कस्टमर उनको जरूर मिल गया. पॉइंट नंबर 2, सिंपल इज गुड. अगेन इस प्रिंसिपल को मैं कितनी बारी आपको पढ़ा चुका हूं. इसको मैं किस प्रिंसिपल भी कहता हूं. जो मुझसे पहले से पढ़ चुके हैं उनको मैं बता चुका हूं. KISS is not the kiss, it means keep it short and simple. Novelist Chetan Bhagat is a strong advocate of simple and clear writing. He seldom uses flowery prose and adjectives. This Pulitzer Prize-winning author follows 4 rules in writing: using short sentences, using short paragraphs, using vigorous English, and being positive, not negative. Describing what something is, not what it isn't. इसका मतलब क्या है? डिस्क्राइब वह करो जो सही है, ना कि वह चीज जो कि गलत है. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर ये हमारी एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा आप यॉन कर रही है रेड कलर एंड ब्लैक स्ट्राइप्स में. प्लीज अगर आप इतना यॉन करेंगी तो मुझे भी नींद आ जाएगी. तो कोशिश करिए आप एटलीस्ट कैमरा पे यॉन ना करें. अगर यॉन आ रहा हो तो कैमरा बंद कर लें. अब आपने शायद कैमरा बंद कर दिया, कोई बात नहीं. सो वंस अगेन, क्रिस्प राइटिंग. जल्दी से पहला पॉइंट. Crisp does not means controversial writing. Crisp does not means trying to outsmart somebody in writing. Crisp also does not means किसी की बेइज्जती वाली writing करना. Crisp writing means to write without anomalies, to write to the point, to write which is exactly what needs to be said. जिसके अंदर मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है, keep the purpose clear in mind. दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था, keep it short and simple. किस प्रिंसिपल? जिसके अंदर 4 मैंने आपको रूल्स बताए चेतन भगत के, जो वो कहता है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, यूज विगरस इंग्लिश, बट वेरी इंपॉर्टेंटली बी पॉजिटिव, डू नॉट बी नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज, नॉट व्हाट इट इजंट. यानी कि जब आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको गाड़ी की अच्छे फीचर्स बताए जाते हैं. ये नहीं बताया जाता कि इस गाड़ी का बम्पर को अगर आपको अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अंदर आपको इतना क्लेम नहीं मिलेगा. ये बताया जाता है इतना क्लेम मिलेगा. दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, राइटिंग फॉर मैगजीन इज अ वेरी टेक्निकल टॉपिक. इसके अंदर कुछ अगर आपको बोरियत हो या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स देकर समझाने की. तीसरा पॉइंट इस पूरे के पूरी हमारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जिनको थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है वो कान अच्छे से खोल लें और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनें, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर सारा का सारा हमारा सेशन टिका हुआ है. और वो पॉइंट है, नो हु इज योर ऑडियंस.
आप लिख रहे हैं किसके लिए? आपका पढ़ने वाला कौन है? 18 साल का कॉलेज का लड़का है, 80 साल का बुढ़ा है, 40 साल या 45 साल का अधेड़ है, या तीनों के तीनों कैटेगरीज का है? ऑफ कोर्स हैरी पॉटर पढ़ने वाला, ऐसा नहीं कि बड़े लोगों को पढ़ने पे कोई अनुमति नहीं है, या 70 साल के ऊपर के लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे, पर हैरी पॉटर के पढ़ने वाले मेन ऑडियंस आर एडोलेसेंट्स एंड किड्स। ऐसा नहीं कि शशि थरूर की हिस्ट्री ऑफ इंडियन और हिस्ट्री ऑफ हिंदूज को आपकी उम्र के बच्चे नहीं पढ़ सकते, जरूर पढ़ सकते हैं, पर ज्यादातर वही लोग पढ़ेंगे जो कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्टोरियंस हैं, यानी कि द इंटेलिजेंसिया ऑफ इंडिया। I'm now going to read the slide and I'll be very grateful if you can listen to it. Of course, because the medium is English, I'll try to translate it in Hindi also. Point number 3 about crisp writing is know your audience. Yani ki know whom you're writing for. I'm now reading the slide. Please pay attention. Know your audience preferences will help you in crafting your piece. In fact, realizing that you are writing for someone specific will help you make better writing choices. For example, if you're writing for your boss and colleagues, you may use certain industry words because they will understand them and even prefer them. But if you're writing for a more general audience, think twice about using technical terms. अब मैं कहता हूं I see you, तो आप बोलेंगे of course I will see you. But अगर एक मेडिकल पर्सन के सामने ICU बोले तो वो बोलेगा भाई क्या हो गया, सब घर में ठीक तो है, क्योंकि उसके लिए ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आज से कुछ साल पहले मैंने, पता नहीं आपको अपनी क्लास में एग्जांपल बताया कि नहीं, चलिए आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा मजाकिया है, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पर मैं शेयर कर लेता हूँ। आज से कुछ 7 साल पहले, इसको जोक कह लो या इसको स्टोरी कह लो, या एक क्रिएटिव राइटिंग का एक, कहीं पर हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे थे, तो हमने एक फैशन इंस्टीट्यूट में लड़की को बोला मेक अ ड्राइंग विद इन अ फ्यू सेकंड्स एंड गिव। विद इन अ फ्यू सेकंड्स का मतलब होता है 5, 7, 10 सेकंड में ड्राइंग बना दे, जानबूझ के उसको कंफ्यूज करने के लिए। उसने पेपर लिया, पेपर लेते हमें वापस कर दिया, कहता है आई मेड द ड्राइंग। मैंने पूछा एक्सक्यूज मी दिस पेपर इज ब्लैंक, कहते हैं आई मेड अ काउ ईटिंग अ ग्रास। मैंने बोला ये वेयर इज द ग्रास, कहते द काउ हैज ईटन इट। मैंने ओके देन वेयर इज द काउ, डू यू थिंक द काउ विल स्टे देयर आफ्टर ईटिंग द ग्रास? तो हम सब हंस पड़े। तो शायद आपने बचपन में इसको एक जोक के हिसाब से भी सुना होगा कि किस तरह आप किसी को आउटविट करते हैं। वो एक और मैंने कहीं पर ये सुना था कि चला यार टॉस करके देख लेते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। कहते चला ठीक है टॉस करते हैं। तो टॉस कैसे करते हैं? चित में जीता पट्टू हारा, चलो ठीक है करते हैं। चित में जीता पट्टू हारा अल्टीमेटली। So that is something known as, you know, using humor, using funniness, not using technical terms. Once again students, crisp writing का दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, know your audience। उसके अंदर वो ये फर्दर कहता है you should know whom you are writing for. If you're writing a report for a school, it will be valuable to know if your professor prefers multi-page report or shorter ones. And if you are preparing a presentation, know if your audience will be able to appreciate humor before you start your talk with a joke. Writing for busy people, you know that you need to place the most important information first. Knowing your audience allows you to organize your message. याद करो मैंने पिछली क्लास में मैगजीन्स वर्सेस न्यूज़पेपर बोला था, जिसमें मैंने बोला था न्यूज़पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी हेडलाइंस, क्योंकि हर एक के पास इतना दिमाग नहीं है, इतना समय नहीं है कि पूरी की पूरी अखबार पढ़ ले। वो ये देखता है हेडलाइंस पढ़ता है और उसी के ऊपर व्यंग लिख देता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मुझे अच्छे से याद है कि कैसे एक ही नाम की एक महिला ने 23 जगहों पर साइमल्टेनियसली नौकरी करके यूपी में 1.25 करोड़ से ऊपर की तनख्वाह एक साल में बटोर भी ली। मजे की बात यह है कि अभी तक गवर्नमेंट उसके वो 23 अलग अलग क्या कहते हैं विभिन्न अकाउंट्स को और विभिन्न जगहों को उसी को ढूंढने में अभी तक लगी हुई है। चलिए खैर, so what it says is you should know your audience when you're writing for busy people. You should know what to write, more important things and important first. Knowing your audience allows you to organize your message and plan your content style and length of your piece. Once again, अगर ये बोरिंग लग रहा है तो मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। क्रिस्प राइटिंग के 3 पॉइंट्स मैंने कराए हैं।
सबसे पहला पॉइंट मैंने कराया है, नो द पर्पस। किस पर्पस के लिए आप राइट कर रहे हैं? फन के लिए कर रहे हैं, ह्यूमर के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, इंप्रेशन के लिए कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बोला है किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तीसरा प्रिंसिपल मैंने जो बताया वो है नो योर ऑडियंस। सिर्फ 2 और प्रिंसिपल्स हैं, पर इन 2 प्रिंसिपल्स को समझने के लिए बहुत बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज होना चाहिए, और वो है, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है अगेन, यूज द पावर ऑफ एग्जाम्पल। दोस्तों, एग्जाम्पल चाहे कितना भी अजीबो गरीब क्यों ना हो, उसकी पावर हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। उसकी पावर ऐसी है कि मतलब, अब जैसे मैं एक आपको बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल देता हूँ, अजीब सा तो नहीं, दुखद एग्जाम्पल है। आप सबने ये पढ़ा है, एक हाथी को पाइनएप्पल में क्रैकर डालकर खिला दिया गया केरल में, पेट में उसके वो क्रैकर फट गया। ये एक सच्ची चीज हुई। पर आपको पता है इस एग्जाम्पल को किस तरह से आज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है? कुछ लोग केरल के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया है कि इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट के लोग, और ऐसे, ये तो वह स्टेट है जहां पर झाड़ू मारने वाला भी शायद एसएससी या मैट्रिक पास है, और वो ऐसी हरकत करेंगे। और दुख से कहना पड़ रहा है, अभी रिसेंटली आज सुबह में, क्योंकि न्यूज करंट अफेयर्स ज्यादा आजकल पढ़ता हूँ, समय थोड़ा ज्यादा है, तो ये एग्जाम्पल को मैंने बड़े अजीब तरीके से देखा एक फेसबुक की पोस्ट पर। पता नहीं एग्जाम्पल मुझे बताना चाहिए कि नहीं, पर देखो पावर ऑफ एग्जाम्पल देखो। किसी ने ये लिखा है, एक हाथी के पेट में पटाखा, वो भी अगर पाइनएप्पल में डालकर फटे तो हाथी मर जाए, ये पॉसिबल नहीं। वो पटाखा नहीं, वो बम होगा, क्योंकि जो पटाखा है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। somebody is running illegal, और you could say arms operation in Kerala। अब मुझे नहीं पता इसको, ये एग्जाम्पल को एक नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है। और दोस्तों, पावर ऑफ एग्जाम्पल बहुत 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 बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी चीज होती है कि sometimes it can virtually reinvent, redraft, or give a new perspective to the entire write up, entire आर्टिकल के को एक नई डायरेक्शन कई बारी पावर ऑफ एग्जाम्पल देता है। अब जैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और देने जा रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल हमारी ये डोमिनोज का है। अब पता नहीं आप में से कितनों ने ये न्यूज पढ़ी कि डोमिनोज ने इस लॉकडाउन में बड़ा अच्छा खासा बिजनेस किया, उसने बड़े पिज्जे बांटे। पर बीच में क्या हुआ, उसके एक पिज्जा की डिलीवरी बॉय के थ्रू 70 लोगों को कोविड हो गया, और उसके बाद they came out with a very big example in their ad. Outside their showrooms, they have put in a very big advertisement, a very big write-up, which says contactless delivery। ये नया शब्द का इस्तेमाल किया। उसको देखा देखी अमेजन ने भी शब्द का इस्तेमाल किया, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। और चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मैंने भी अपने घर के अंदर कुछ खाने पीने का सामान, चाहे वो आई वुड से सनफ्लावर का, फॉर्च्यून का आटा हो या सनफ्लावर का ऑयल हो या जो भी हो एक्सेट्रा, मंगवा लिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन क्रिस्प राइटिंग, check for the power of example. You cannot imagine how your manuscript will look if you don't give examples. Relate examples with not only current affairs, but sometimes examples becomes not only your style statement, but also your intonation. But be careful about copying. Never plagiarize. ये बोलना बड़ा आसान है। I hope आप में से जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, plagiarize का मतलब है when you take an idea or take a thought and cut paste it, make certain cosmetic changes and write it under your name. That is known as plagiarizing, या दूसरे की चीज को चुरा लेना। और तो और, एक मैं अपने टाइम में जब मैं पढ़ता था, मेरे कॉलेज में हमारे टाइम पर एक सेइंग होती थी, कहते थे to plagiarize from one is writing, to plagiarize from many is research।
तो ये रिसर्च के ऊपर, एक जो लोग रिसर्च करते थे उनको हम इस तरह से चिढ़ाते थे। खैर, वंस अगेन पहले 4 पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ क्रिस्प राइटिंग के। पहला पॉइंट, कीप द पर्पस क्लियर इन माइंड। पॉइंट नंबर 2, किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने बोला था आप सोए मत, अपनी आंखें खोल ले, मेरे हिसाब से कहिए कि आंखें अभी तक खुली हुई है, वो है नो whom you're writing for, नो योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस कौन है? जैसे मैंने आपको बताया है कि sometimes you're writing it for 17 years old, sometimes you're writing for 70 years old, and sometimes you're writing it for everyone. जब से ये लॉकडाउन हुआ है, फूड चेन्स ने क्या देखा है, लोग और चटकोरे हो गए, लोगों को और अपना समोसा खाने की इच्छा है, लोगों को और मोमोज खाने की इच्छा है, लोगों को और ब्रेड पकौड़े की इच्छा है। तो इसलिए now they have started writing about home and contactless deliveries of food and everything. अब किस हद तक ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, but they found out कि this audience is from 17 to 70 years old. हर एक को इच्छा है कि थोड़ा सा घर का खाना खा खा के लेट मी ईट समथिंग मोर स्पाइसी। खैर, कमिंग डाउन टू द फोर्थ पॉइंट जो मैंने अभी किया है, और वो पॉइंट बहुत एग्जाम्पल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है नथिंग 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 इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पावर ऑफ एग्जाम्पल। योर एग्जाम्पल समटाइम्स डिफाइंस योर थॉट प्रोसेस। जिस तरह मैंने अभी आपको द क्रैकर बर्स्ट इन द स्टमक ऑफ एन एलिफेंट का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह इफ यू सी, मैं ही नहीं, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं इस वर्ल्ड के, देखिए अभी एग्जाम्पल की पावर देखिए, अभी एग्जाम्पल में अब आप बोलेंगे कि सर हम आपको गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि आप उसका नेगेट नहीं कर सकते। इस वर्ल्ड के अंदर ये प्रूव हो चुका है कि अमेरिका से भी स्ट्रॉन्ग मेडिकल सिस्टम फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का है। ये क्लेम करते थे कि अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारा है, पर सबसे ज्यादा नाकामयाब अमेरिका के बाद अगर कोई कंपनी हुई है कोविड को रोकथाम करने में, तो वो है स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी। क्योंकि अमेरिका के बाद यही 3 कंट्रीज है, कुछ हद तक इटली भी, जिनमें कोविड के केसेस सबसे ज्यादा हुए। तो इसके बेसिस पर इंडियन डॉक्टर्स ने क्या बोला है? इंडियन डॉक्टर्स ने बोला है, बहुत बड़ी बात बोली है, लुक एट द पावर ऑफ एग्जाम्पल। दे से this virus is all about your immunity system. Indians, they live a rough and tough life. They live the life on the streets. They eat all type of foods. They work in inhumane conditions. That is why their immunity system is strong. तभी आज सड़क पे चलने वाले वर्कर को शायद इंशाअल्लाह को कोविड नहीं हुआ, वो आज भी सुबह उठता है और अपनी दिहाड़ी की तलाश करता है। अब मुझे नहीं पता इस एग्जाम्पल से आप कितना प्रभावित है, मैं तो बड़ा प्रभावित था जब मैंने कुछ न्यूज आइटम्स में ये सुना। सो क्रिस्प राइटिंग के लिए चौथा एग्जाम्पल इज द पावर ऑफ एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल, बस मेरा समय पूरे होने जा रहा है, 5 मिनट और रह गए हैं, और वो है दैट इज ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से ये तो ज्यादा रेलेवेंट तो खैर मैं नहीं कह सकता नहीं है, पर ज्यादा समझने की चीज उसमें नहीं है, और वो कहता है प्रूफ रीड व्हाट यू राइट। प्रूफ रीड का मतलब never sent out written work without reviewing in first. A simple misspelled word can ruin an entire piece and make your hard work go to waste. To review your book systematically, read it, reread it, or sometimes you can ask a friend to review it for you. So जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा कुक या एक अच्छी हाउसवाइफ हमेशा क्या कोशिश करती है, एक मिनट जरा चख कर बता दो नमक मिर्च ठीक है कि नहीं। चाहे उसको वो 100वीं बारी उस डिश को लेडी बना रही हो, और जब भी वो उस डिश को एक बारी और बनाएगी, तो हमेशा घर के किसी मेंबर से या हस्बैंड से या अपने किसी कॉन्फिडेंट से कहेगी, भाई खाना तो तकरीबन बन गया है, पर एक मिनट के लिए जरा चख कर जरा पहले बता दो इसके अंदर नमक मिर्च कैसा लग रहा है, इसका बेसिक स्वाद कैसा लग रहा है। सिमिलरली फॉर क्रिस्प राइटिंग, पॉइंट नंबर 5 और द लास्ट पॉइंट इज प्रूफ रीड, टेक अ रिव्यू, टेक एन ओपिनियन। कभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आज की डेट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट या जितने भी सो कॉल्ड आई वुड से गवर्नमेंट बेस्ड नोटिफिकेशंस होते हैं, उनको हमेशा 2 या 3 लेवल्स पर से
अप्रूवल की अथॉरिटी या सिग्नेटरी की जाती है, जिससे कि हर कोई उसको अप्रूव करने से पहले री पढ़ ले कि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। ये वैसे विडंबना की बात है, उसके बावजूद भी कई बारी हमारे सीबीएसई और आईआईटी के पेपर्स के अंदर लोग फ्लॉस निकाल देते हैं। So students, my time is already over. It's 3:29. I don't know what's the time in your watch. 3:28 to be precise. So in 2 minutes, I will cover the 5 important topics which I've covered in a small but very interesting but very important topic. Once again, जिनके पास syllabus नहीं है वो writing for magazines का syllabus मैम से ले ले। जिनके पास स्लाइड शो नहीं है उनको स्लाइड शो मिल जाएगा। अब ये मत अटैक करना मैम को कि मुझे अभी स्लाइड शो दो, हालांकि मैंने मैम को दे दिया है। थोड़ी आपकी अटेंडेंस देख ले, थोड़ा आपका इंटरेस्ट देख ले, और अगर इंशाल्लाह भगवान ने चाहा कुछ आपको होम असाइनमेंट दे के देख लेते हैं। जिनके उंगलियों में ज़्यादा थकान नहीं होती वो उसको टाइप करके मुझे मेल से ईयान की मेल आईडी पर भेज सकते हैं। खैर वो बाद में होगा। सो क्रिस्प एंड क्लियर राइटिंग के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। कुछ लोगों के पास पेन्स और क्या कहते हैं पेपर्स हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उससे थोड़ा टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। तो चाहे आप लिख रहे या ना रहे हो, चाहे आप मेरी शक्ल का डिजाइन बना रहे हो, पर पेन हाथ में पकड़ लो, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट है, कीप द पर्पस क्लियर इन योर माइंड। हुम आर यू राइटिंग फॉर? बॉस के लिए लिखने की भाषा अलग है, बच्चों के लिए लिखने की भाषा अलग है, और एक प्रेम पत्र लिखने की भाषा अलग है। यार वो लिखना मैं नहीं आपको सिखा सकता, उसमें आप इससे ज्यादा समझदार हैं। वैसे भी आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो वो पत्रता की जमाना चला गया। पॉइंट नंबर 2, KISS, keep it short and simple. Keep it short and simple का मतलब use short sentences, use short paragraphs, use precise English words, be positive, try not to be negative, describe what something is, not what it isn't. तभी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हजार बातें उल्टी कहते हैं, पर एंड में वो ये चीज जरूर कहते हैं, ऐसी संभावना हो सकती है। अनिश्चितता का खेल है इस देश के अंदर। अगर आप देखें, द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। एनीथिंग इज पॉसिबल, एज दे से इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। चलिए, पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम रिपीटिंग, ऑलरेडी 3:30 हो गया, फिर भी मैं 2 मिनट और ले रहा हूं, और वो है नो योर ऑडियंस। जानिए कि whom you are writing for. Point number 4 is power of example. एग्जाम्पल से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम्पल का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप एग्जाम्पल तक को मैन्युपुलेट और उसको क्या कहते हैं किसी एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल को आप एक अलग सा डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नींबू पानी को फ्रेश लाइम सोडा का डायरेक्शन दे सकते हैं, फ्रेश लाइम सोडा को आप एक वर्जिन मोहितो का डायरेक्शन दे सकते हैं, सिर्फ उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी प्रेजेंटेशन बदल। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिए कि कोई 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 केरल के अंदर अमानसिकता की बात कर रहा है, को वहां के अंदर पशुओं पर अत्याचार की बात कर रहा है, शायद मेनका गांधी का एक अलग पर्सपेक्टिव है, या शायद किसी और आई वुड से पॉलिटिशियन का कोई अलग पर्सपेक्टिव है, बट the power of example is something which you cannot I would say leave. And of course dosto, the last part and the most interesting part is proofread it, reread it, get a second opinion. It says never send out written word without reviewing it first. A simple misspelled word can ruin your entire piece and make it all look go waste. Of course आखिरी स्लाइड पे थैंक यू लिखा है, वो मैं पे दिखा नहीं सकता। तो my humble request is now you can speak. I'm going to keep quiet, but please show some discipline. Thank you. कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो क्या मैं असाइनमेंट देने की जरूरत कर सकता हूँ? अब तो बोल दो।
जी सर। यस ओ सर। तेरी, कहीं कुछ दो महान आवाजें आई हैं, दो महान आवाजें को कुछ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, तो मैंने चलो ये बोल दिया। असाइनमेंट देने की जरूरत कर सकता हूँ, चलिए जोक सुनाने की जरूरत तो नहीं कर सकता क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर भी, यान के ऊपर। कल को मुझे मेरे ऊपर वो दिक्कत आ जाएगी। सो काइंडली टेक आउट अ पेपर, पीस ऑफ पेपर एंड पेन एंड राइट एन आर्टिकल। तीन असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, तीनों में से एक करेंगे तो मैं आपका धन्यवाद फील करूंगा, दो करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और तीन करेंगे तो मैं अत्यधिक प्रभावित हो जाऊंगा। तो आपके ऊपर है, और इसको अटैचमेंट बनाकर यान की ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। जिनके पास पेपर पेन है वो लिख ले, जिनके पास पेपर पेन नहीं है वो रिकॉर्ड कर ले। और जो बहुत महान है, कोई पार्क में बैठ के मुझे सुन रहा है या कोई गाड़ी में बैठ के मुझे सुन रहा है, वो अपने दिमाग के क्या कहते हैं, सो कॉल्ड मेंटल मेमोरी में रिकॉर्ड कर ले। राइट बिटवीन 150 to 300 words, 3 articles. Article number 1, inverted commas open, de-stressing of nature and environment is the biggest and most positive effect of the COVID pandemic. Inverted commas closed. My views. इसको हिंदी में बोल रहा हूं, हमारे वातावरण को डी-स्ट्रेस होना इस कोविड-19 पैंडेमिक का केवल और सबसे पॉजिटिव एक प्रभाव रहा है। इसके ऊपर मेरी टिप्पणी, मेरा व्यूज। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। Yes, de-stressing of the environment has been the biggest and the most positive effect of the COVID-19 pandemic. Inverted commas closed. Comments. Topic number 1. Topic number 2. Making our life disciplined in a closed environment was the biggest 55-day isolation challenge. My comments. Making my life disciplined in the closed, isolated environment in the past 55 days was a very big challenge, was my biggest challenge. देखिए ये टॉपिक्स मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जहां देखो यही टॉपिक्स के आसपास की बातें की जा रही हैं। तीसरा टॉपिक मैं अलग सा दे रहा हूँ, तीसरा टॉपिक मैं अलग से दे रहा हूँ। ये पीछे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक बैठा है किसी के, बड़ा प्यारा बालक है, शक्ल नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। थर्ड टॉपिक is something which is of your interest. Online streaming platforms will now be the new Cineplex. My views. Online screening platforms will be the new multiplex या Cineplex. बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक्स हैं तीनों के तीनों। इसके ऊपर 150 से 300 शब्द के ऊपर टाइम मिले। देखिए आप ये मत सोचेगा कि मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये एक आपके खाली समय में आपके ब्रेन को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए एक, मेरे हिसाब से दिस कैन बी आल्सो लुक्ड अपॉन एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बट चूंकि राइटिंग की क्लास है तो राइटिंग क्लास में अगर राइटिंग की असाइनमेंट ना दूं तो वो भी मेरे लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लास्ट वाला एक बार रिपीट करना यार, लास्ट वाला मातृभाषा में समझो। online streaming platforms will be the new Cineplex of future. आने वाले समय में
चाहे आप उसका नाम नेटफ्लिक्स कह लो, चाहे उसका नाम बालाजी आल्ट कह लो, चाहे उसका नाम आप बूट कह लो, चाहे उसका नाम आप उल्लू कह लो, चाहे उसका नाम आप जो मर्जी कह लो। आने वाले समय में यही आने वाले समय के पीवीआर है, यही आने वाले समय के रिलायंस समझ गया था सर, मैं बस वो पूछ रहा था कि क्या लिखा क्या। मुझे नहीं सुनाई, मुझे डिस्टर्बेंस पड़ी थी। कोई रेलेवेंट बात है तो प्लीज करें। आखिरी 2 मिनट रह गए, किसी को कुछ रेलेवेंट पूछना है तो पूछे। मेरे से हेलो हाय नमस्ते मत करें। सर हिंदी में बता दीजिए सर। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आने वाले समय के मल्टीप्लेक्स हैं, आने वाले समय के यही मल्टीप्लेक्स हैं, क्योंकि लोगों ने सोचा मैं आपको सारा अगर मैं आइडिया आपको दे दूंगा तो फिर आप कैसे सोचोगे? क्या ये प्लेटफॉर्म मल्टीप्लेक्स हो सकता है ना हो? आप ये बोल सकते हो नहीं? मेरे हिसाब से ये सेशन रीडायरेक्शन पता नहीं क्या किया। I've given you 3 topics, students. I've given you ideas on script writing. I've given you 5 points. I've taken a morning class today, which is of a new topic. Or I don't know whether you are in Delhi, outside Delhi, etc., wherever you are. एक चीज को प्लीज बार बार समझ लें, अगर हो सके तो अभी भी अपनी घड़ियां मिला लें। 3:39 हो गया है, इसी हिसाब से हम अपने मोबाइल, क्योंकि मोबाइल कभी गलत टाइम नहीं बताता, घड़ी बता सकती है। तो प्लीज कि आप पूरा सेशन शुरू होने पे आए और सेशन शुरू होने तक ही मेरे साथ रहे, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि मिड लेवल में सेशन को ज्वाइन करने से, हालांकि मैं बीच बीच में रिपीट करता हूँ और कुछ शायद कुछ बच्चों को बुरा भी लगता है, बट फॉर द लेट joiners also I give them a chance to understand the past that they have missed. पर कोशिश करें कि आप प्लीज मेरे एक ही सेशन को करना है लेट सर ज्वाइन, इनमें से। आप प्लीज लेट ज्वाइन ना करें, आप मेरे सेशंस को टाइम से सेशंस को ज्वाइन करें। एक ही करना है ना सर? अरे पीछे प्लीज, जिसके घर में भी छोटा बालक है, मुझे खुद बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, पर अब जमाने ऐसे हैं कि उनके गालों को नहीं पूटा जा सकता, इसलिए अपने पीछे के जिनके घरों में बालक आवाज निकाल रहा है उनके बालकों को चुप करा दें प्लीज। और जो लोग पार्क में बैठते हैं प्लीज पार्क में ना बैठे, वो पीछे की आपकी क्या कहते हैं व्हाट यू कैन से ब्यूटी सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। बहुत जरूरी हो तो सर एक पार्क ही में करना है ना? बैठे। क्या डंडा घंटा कुछ पता नहीं, मुझे नहीं समझ, मुझे आपकी आवाज कटी है। सर एक ही करना है ना तीनों में से? मैंने बोला है 1 करोगे तो आपका धन्यवाद है, 2 करोगे तो मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, 3 कहोगे तो मैं ढोल और नगाड़े लेकर आपके घर पे आकर उनको बजाऊंगा। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? अब इसको मैंने क्रिस्प क्योंकि क्रिस्प राइटिंग है ना, इसलिए मैंने क्रिस्प भाषा में कह दिया है, ठीक है? बड़े बड़े नगाड़े और ढोल वाले को लेकर आऊंगा, घर के बाहर बजवा दूंगा। ओके सर। कितने आप महान हो, एक टॉपिक करने में आपको पता नहीं मतलब इतना, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग विद यू पीपल। एंड काइंडली वंस अगेन नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में प्लीज आप लोग प्लीज आपकी आप आई नो योर फेस इज नॉट वेरी परसेप्टेबल और नाइन इज माइंड इंपॉर्टेंट, बट प्लीज बैकग्राउंड के अंदर हो सके तो एक काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट रखें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास।